कोड रियूजेबिलिटी क्या होता है? बेनिफिट्स बेस कोड अगर रीयूज कर रहे तो यस प्रोग्रामिंग का टाइम memory allocation, yes very good about the memory then time of execution okay अगर हम कोई प्रीवियस कोड एग्जिस्टिंग कोड रीयूज कर रहे हैं कोड रियूजेबिलिटी कांसेप्ट यूज कर रहे हैं बाय यूजिंग द इनहेरिटेंस राइट इन आवर जावा प्रोग्रामिंग उससे क्या होगा कि हमारी मेमोरी एफिशिएंट यूज होगी बार बार कोड बनाने से क्या होगा रीराइटिंग द कोड्स मेमोरी क्या होगी यूज होगी मोर मेमोरीज आर यूज्ड when you write the same code again and again right memory is allocated for that logic that code and then second one is a time consuming process टाइम कंज्यूमिंग ओके टाइम टेकन जो प्रोसेस रहेगा ना एग्जीक्यूशन का हमेशा क्या करेगा सेम कोड इज अगेन एंड अगेन कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड दैट कोड तो उसके लिए क्या होगा जो जेवीएम का हमारा टाइम लगने वाला है किसे कंपाइल करने के लिए और एग्जीक्यूशन करने के लिए वो सेम टाइम मतलब टाइम इंक्रीज होगा एग्जीक्यूशन टाइम विल बी इंक्रीज्ड if we are not using the inheritance concept right if we use the code reusability concept through the inheritance then क्या होगा time is the execution of time is decreases जो execution का time क्या होगा decrease होगा if we use the code reusability right then और कोई benefit yes hello redundancy होती code redundancy means duplicate codes सेम कोड रिडंडेंसी क्या होगी इससे रिड्यूस होगी मिनिमाइज होगी इफ वी यूज द इनहेरिटेंस कांसेप्ट मींस रीयूजेबिलिटी कांसेप्ट द परफॉर्मेंस ऑफ आवर एप्लीकेशंस कैसा रहेगा बेटर रहेगा गुड परफॉर्मेंस ऑफ आवर एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन राइट देन होगा कि हमें एप्लीकेशन कोई एप्लीकेशन अगर हम डेवलप कर रहे हैं इफ वी आर डेवलपिंग एनी एप्लीकेशंस तो जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम लगेगा ना वो लेस लगेगा कम टाइम लगेगा कम समय में हम एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं बाय यूजिंग द इनहेरिटेंस तो इनहेरिटेंस में होता क्या है कि कोड रियूजेबिलिटी होती है राइट तो कितने टाइप्स के इनहेरिटेंस होता है हमारे जावा में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा प्रोग्रामिंग 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा प्रोग्रामिंग बट जावा सपोर्ट्स ओनली 3 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस single inheritance हाँ 3 टाइप multi-level inheritance and hierarchical inheritance these 3 inheritance is supported in java जावा these are used in our java programming only right so see the Yes. single inheritance in a single inheritance how many classes are there guys how many Two classes classes. over there only Two. there is a 2 classes 2 प्लस there is classes. only one parent and one child class Child. now how we can Child. achieve the inheritance in java guys yes how we can achieve the inheritance in java programs using the extend By using keyword. extend keyword. By extend okay keyword. very by good using extend now single inheritance single inheritance in single inheritance there is only one parent class and only one child class now see Child this is class. the one class that is the parent class and now see this is the child class B is the child class B is the subclass of which A class right B is the subclass of A now tell me guys A is the subclass of any class now Yes, physically sir. yes yes which Yes. class is the parent class of A Object. object class is the parent class of A by Object. virtually object class is the parent class of which class A class 1 minute huh? B is a parent class
So how many names of parent class? How we can identify? That is the parent, base, and superclass by its name. Parent, we can say parent class. Then we can say also that is the base class. That is also superclass. Okay. And for a sub, can say child class, child, Subclass. sub, and derived. Derived. Okay. The properties inherits the class which properties inherits that class is a parent class. The class which is inherits the properties of another class, that is the child class. Okay. Which keyword we use to achieve the inheritance? Extend keyword we use to access, make the relationship between the two class. Using that keyword, extend keyword, we achieve the inheritance in our Java programs. Now see guys, can we make a class as a public? Yes, we can make a class as a public. Then can we make a child class as a public? Yes, we can make child class also as a public. Okay, there is no any restrictions for using the access modifier. See, now two class. See, that is the parent class. Okay, there or there we use only one function, and in child there again we are used one function m2 with the name m2. Now we are creating the object of which class? Now here guys, we are created the object of a child class. By using object of a child class, we call the members of a parent as well as member of a child. See, this member is that member is the parent member. That is the, this is the child member. Okay. See, any real-time example now, guys? This is vehicle. Vehicle is a base class. It is inherited by car, motorbike, motorcycle, right? Yes. Petrol, diesel. Okay. Petrol car and diesel car is the two classes of which vehicle class. Car is the base class and that is inherited by a petrol car, and second class is a diesel car. Means which type of inheritance is there? There is only one parent and more than one child class, means hierarchical inheritance. Now see, by creating the object of a child class, we call the which function? Parent function as well child function. Both the members of a class were accessed by creating the which object? By creating the object of a child class. How many ways we create the object in our inheritance? How many ways we create the object of a class? 4 object we used in a inheritance. Now see, we create the object of a parent class also. Parent E1 is equal to new parent. Okay. By creating the object of a parent, can we access the child member, guys? See, P1 dot M1 from where? M1 function of a parent, right? M1 belong to the parent. This class में available है M1 function that is available inside the parent class. Now, child extend to whom? Child extend the parent, extended the parent class. So whatever data functions and data members of a parent class is inherited into the child class, right? So which function is by default by virtually available in the child class? M1 function is available into the
child class. Why? Because of extend keyword, right? Then if we create the object of a parent class, now see, by creating the object of a parent class, can we access the member of parent? Yes, we can access the member of a parent by creating the object of a parent. Now then e1 dot m2, can we access the m2 function, means from a child class? Can we access child member by creating the object of parent? Is it possible? It is not possible. No. Okay, we can access the members of a child by reference of a parent. Now say guys, like a real time, our parent and child. Parent access its own bank account and its own property. Can parent access the property of a child, his child? No, there is a restriction. मीन्स हमने देखा है ना रियल टाइम में, अगर पेरेंट की फादर की कोई प्रॉपर्टी हो तो बाय डिफॉल्ट बच्चों का उसका जो भी उनके बच्चे होंगे उनका क्या होता है, अधिकार होता है। ओके, बट अगर उनके सन मीन्स डॉटर हो या सन, अगर उनकी प्रॉपर्टी है बच्चों की, तो उस पे हक होता है क्या फादर का? नहीं होता है, राइट? लाइक दैट इन जावा प्रोग्रामिंग, अगर पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना रहे, create the parent object and we call parent member. Yes, we can access the parent member. So next thing, can we access the member of child class? No, we can't access the child member. Now see, one member we add one more. Int a is equal to 100. Now which is the present in a parent class? Can I access it in a child class? One dot a. Yes, it is accessible to the child class. What kind of error? Variable to complete the local variable declaration, right? No problem with the 200. See, yes, it is accessible into the child by the reference of parent. Int p is equal to 200. It is accessed here by a reference of a parent. Is it possible? No. Now there is a error. B cannot be resolved or is not a field. B is not a field where in a parent class. Parent class में है क्या available? Which kind of a compilation error there guys? Create a field B in type parent. पेरेंट में आपको उसको डिक्लेयर करना जरूरी है, पेरेंट में आप उसे क्रिएट करो। पेरेंट क्लास में बी नाम का वेरिएबल अवेलेबल है क्या? इज देयर एनी बी नेम वेरिएबल इज प्रेजेंट इन द पेरेंट क्लास गाइस? नो बी वेरिएबल, बी नेम वेरिएबल इज नॉट प्रेजेंट इन द पेरेंट क्लास। So that's why we can't call by using the parent reference. चाइल्ड के मेंबर्स हम बाय पेरेंट रेफरेंस हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते। See, अगर हमें both the class want to access the both class members in a subclass, then which class object is necessary to create? Child class object is necessary to create first. By using that reference, we can call the parent as well child members in our Java programs. Now guys, जैसे कि हमारे फादर होते हैं, ओके, उनकी प्रॉपर्टी किनकी होती है बाय डिफॉल्ट? उनके जो भी बच्चे रहेंगे, राइट? तो हर एक बंदा है ना, जो भी बच्चा है वो पेरेंट की भी प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता है, राइट? देन वो उसकी खुद की भी जो कमाई हुई रकम होती है, खुद की प्रॉपर्टी, वो भी उसकी होती है, राइट? उसे भी उसे एक्सेस कर सकता है और पेरेंट की भी एक्सेस कर सकता है। जैसे कि मानो कि हमारे फादर है, उन्होंने मतलब जो भी प्रॉपर्टी कमा के रखी है, बाइक हो, कोई भी मीन्स स्टेबल प्रॉपर्टी हो या कैश प्रॉपर्टी हो, राइट? वो कौन एक्सेस कर सकता है? वो एक्सेस दैट उनके बच्चे एक्सेस कर सकते हैं फादर के, राइट? उसके बाद अगर आप लोग हैं, आप कल जॉब लग जाएंगे आप लोगों को, तो आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएंगे, राइट? वो जो सैलरी वो भी आप लोगों की हुई, उसे आप लोग यूज कर सकते हो एज वेल। फादर के पास भी जो आपके मनी होगा, कोई भी कैश में अमाउंट होगा या कोई प्रॉपर्टी होगी, उस पे भी आप लोगों का हक बनता है, आप उसे भी यूज कर सकते हो।
जैसे कि आपकी सैलरी भी आप यूज कर रहे हो और आपके फादर की भी प्रॉपर्टीज आप यूज कर रहे हो। तो जावा में क्या होता है, सेम एज इट इज, कि चाइल्ड क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, नाउ वेयर if we are created the object of a child class by using that reference, we can access the members of a parent as well as child members also, right? By creating the object of a child c1 is equal to new child. Okay. By creating the object of a child, we can access both the members of both the class members. Parent के भी access कर सकते हैं, as well we can access the members of the child. c1 dot m1, now accessing the, yes, we are accessing c1 dot a. It is possible, yes it is possible, is equal to 10 value, reassign the value. Then c1 dot m2, is it possible? Yes it is possible. Is it possible? Now c1 dot b, yes, because it's one member. Right now, see there, for there any compilation error by using the reference of child, guys? Yes, बताओ। यहाँ पे हम child का reference यूज कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत आ रही है? There is any compilation error there? Yes, No, sir. no error, right? Because by creating the reference of child, we can access the both the class members, parent as well child member, right? कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर if we create the object of a parent, only we can access the members of the only parents. We can't access the only access the members of a child, right? अगर both the class अगर members हमें access करना है, want to access both the class members, then we have to create the object of a child class. आगे होता है parent p2 is equal to new child. Parent is p2 is equal to new child. Now of p2 is the reference of which parent? p2 is the reference of a parent. किसका reference है p2 guys? p2 is the reference of a parent, right? Parent का वो reference है. And now it holding the object of which class? It is holding the object of a child class. Child class. वो किसका object hold कर रहा है? It is holding the object of a child class. जैसे कि fathers होते हैं अपने parents, they are holding the grandson, okay? जो भी उनके होते हैं ना बच्चों के बच्चे, तो उन लोगों को वो संभाल सकते हैं, या जैसे हम फैमिली में देखते हैं ना, उनके साथ वो कोई भी व्यवहार, मतलब सारी चीजें वो पूरी कर सकते हैं, वो पेरेंट। P2 is a reference of parent, it holding the object of which child. Child को object hold कर रहा है. Is it possible? Yes. Now accessing the members. c1.m1 parent की function है. Yes, it is access. But अब now see, it is the member of which it holding the object of which child. तो यहाँ पे access हो रहा है कि m2 आकर access करते हैं हम. Now we are accessing the member. तो हो रहा है क्या guys? It access the member of child. नहीं हो रहा है. चेंज टू टाइप m1, या तो क्या करो, क्रिएट मेथड m2 इन टाइप पेरेंट में उसे बनाओ. एक्सेस हो सकते हैं क्या गाइस? नहीं हो रहा है, इससे हम चाइल्ड के मेंबर्स एक्सेस नहीं कर सकते. ओनली वन वे विच इज बाय क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ अ चाइल्ड क्लास. ऑब्जेक्ट नाउ, बट विच थिंग इज देयर लॉजिकली? Now P2 is holding the object of his child class. So is it possible? Means there is a chance to access the member of the child class because it holding the whole object of which class? Child class. But it is not possible to access the members of a child by using the reference of a parent. Again guys, where use for their reference of which class? Parent. By that reference can be accessed member of a child? Not it, that is not a possible. Again,
So next concept is a child C2 is equal to new parent. Now look guys, can parent reference hold the object of a parent guys? Sorry, can child reference hold the object of parent? No, it is not holding the object of a parent. Okay, child का ऑब्जेक्ट, चाइल्ड का रेफरेंस पेरेंट का ऑब्जेक्ट होल्ड करता है क्या? नहीं करता है. ओके, देयर इज द, इफ वी आर डू दैट थिंग देन देयर इज द कंपाइलेशन एरर. अगर हम इस तरीके का कोड बनाएंगे तो उसमें क्या होगा? कंपाइलेशन एरर आएगी, क्योंकि चाइल्ड ऑब्जेक्ट, चाइल्ड रेफरेंस कांट होल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ parent. Type mismatch, cannot convert from parent to child. Parent से child में हम convert नहीं कर सकते. ओके, जैसे कि सिबलिंग्स होते हैं ना, ब्रदर्स लोग होते हैं, ब्रदर्स है. अगर एक बंदा है ना जॉब को लग गया है और एक बंदे को जॉब नहीं है, एक भाई को जॉब को है, एक भाई जॉब को है और एक जॉब को नहीं है, तो जो जॉब वाला है वो सारी जो मतलब जो भी इसेंशियल होती है लाइफ में जीने के लिए, जो भी चीजें लगती है इसेंशियल थिंग्स, वो प्रोवाइड करेगा क्या कि उसके भाई को दूसरे? नहीं कर सकता है. वो उसे संभाल नहीं सकता, क्योंकि उसकी परवरिश नहीं कर सकता वो कोई भी. पूरी सारी कोई भी चीजें लगेगी उसके भाई को लगती होंगी, वो कंप्लीट करेगा क्या? सारी चीजें प्रोवाइड करेगा क्या गाइस? वो नहीं करेगा, क्योंकि चाइल्ड डजंट होल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज पेरेंट. वो पेरेंट के ऑब्जेक्ट को होल्ड नहीं कर सकता है. वो कोई भी उसकी विल मीन्स पूरी नहीं करेगा, राइट? बट parent reference can hold the object of child. Yes, it hold the object of the child. parent है ना, parent hold कर सकता है बच्चे के बच्चों को भी. ओके, बट चाइल्ड का रेफरेंस पेरेंट के ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकता है गाइस? इट इज नॉट होल्डिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ अ parent. Okay, see, these are the concept regarding to the objects in inheritance. So four types of object we create in a inheritance guys. इस तरीके के होता है कि एक तो पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाओ. by using the parent object we can access only the member of a parent class. by creating the object of a child we can access both the class members, parent as well child. both the class के members, हम दोनों ही class के member हम एक्सेस कर सकते हैं. किसका ऑब्जेक्ट बनाया था? चाइल्ड क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, राइट? देन पेरेंट का रेफरेंस होल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ चाइल्ड. पेरेंट का रेफरेंस है ना, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट होल्ड कर सकता है, बट वो मेंबर्स एक्सेस कर सकता है कि चाइल्ड के मेंबर्स एक्सेस नहीं कर सकता. इट्स होल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ चाइल्ड बट इट कैन नॉट एक्सेस द मेंबर्स ऑफ अ चाइल्ड. देन नेक्स्ट लास्ट वन होता है कि child reference can hold the object of parent. No, it doesn't hold the object of a parent. child reference doesn't hold the object of a parent class. Now wait to clear all of you. सभी लोगों को क्लियर है क्या ऑब्जेक्ट क्रिएशन कंसेप्ट इन इनहेरिटेंस? ओके, हमेशा क्या करना है हमें, अगर पेरेंट दोनों ही क्लास के मेंबर्स एक्सेस करने हैं तो then we create the object of a child class. या तो only once किस क्लास के मेंबर्स एक्सेस करने हैं, only the parent class, then we create the object of a parent class, right? Depends on our logic and requirement, right? Take a screenshot guys. Take this screenshot. Completed.
Inheritance Okay, means, sir. see, that is the person class. Okay, that class is a base class. अब पर्सन क्लास है, पर्सन से स्टूडेंट हो सकता है, देन या तो एम्प्लॉय भी हो सकता है। ओके, अब ये पर्सन हुई, which is that class, person is the सब क्लास, पेरेंट क्लास हुई। अब ये स्टूडेंट की भी हुई और एम्प्लॉय की भी हुई। अब देखो यहाँ पे इनहेरिटेंस किस तरीके से वर्क होता है। अब देखो, स्टूडेंट एक्सटेंड टू होम पर्सन, पर्सन ही स्टूडेंट होता है या तो पर्सन ही एम्प्लॉय होता है, राइट। देखो पर्सन की जो बेसिक मींस बेसिक प्रॉपर्टीज, विच आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ पर्सन, जैसे कि उसका एक कलर होता है, राइट। एक फिजिकल प्रॉपर्टी मींस नाम होना, एक उसका कलर, ओके, उसका वेट, जो भी बेसिक प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे में होती है वो, ओके। देन अब उससे पर्सन से ही क्या मिलता है कि वो टॉकिंग, ओके, दैट इज वन फैसिलिटी, दैट इज वन प्रॉपर्टी, ओके, वन टास्क। वो चल रहा है, वॉकिंग, खाता है, ईटिंग, ओके, ईट करना, जो भी बातें, वट एवर एक्टिविटीज ऑफ द पर्सन, वो सारी चीजें क्या हो गई यहाँ पे बेसिक वाली हो गई, ओके, बेसिक प्रॉपर्टीज। अब बेसिक प्रॉपर्टी तो हो गई है, देन अगर उस बंदे को स्टूडेंट बनना है आगे चल के, ओके, स्कूल जा रहा है मीन्स वो क्या हुआ, स्टूडेंट। बट वो स्टूडेंट की बेसिक प्रॉपर्टी क्या रहेगी, जो पर्सन की है वही प्रॉपर्टी जो एक्सेस कर रहा है, एक्सेस कर रहा है मीन्स इनहेरिट कर रहा है, राइट, अक्वायर कर रहा है, पर्सन से क्या कर रहा है, अक्वायर कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है, एंड एज वेल उसके साथ वो न्यू फंक्शनैलिटीज ऐड करवा रहा है, एडिशनल ऑफ न्यू फंक्शनैलिटी। जो भी स्टूडेंट में क्या रहेगा, आप न्यू फंक्शनैलिटीज उसकी खुद की क्या रहेगी। चलो सिंपल सी अगर यहाँ पे बोलेंगे ना, तो नवीन पर्सन विच इज द बेसिक एक्टिविटीज अगर बोले तो, ओके, ओके, वर्क इज द वन बेसिक प्रॉपर्टी, राइट। देन यहाँ पे अगर स्टूडेंट बोर्ड हो रहा है, स्टूडेंट क्लास है, एक नई क्लास बन रही है, तो एक नया बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, वो किससे एक्सटेंड कर रहा है, पर्सन, पर्सन की जो बेसिक प्रॉपर्टी है विथ एडिशनल प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट है, यहाँ पे हुआ वो रीड कर रहा है, रीडिंग, ये उसकी हुई न्यू प्रॉपर्टी। अब लर्न करना तो पर्सन भी लर्न करना है, कोई भी चीज सीख रहा है मीन्स वहाँ पे भी लर्निंग हो रही है, रीडिंग। उसके बाद होमवर्क कर रहा है, होमवर्क, नई प्रॉपर्टी बनी, उसने एडिशन कर दी, ओके। अब स्टूडेंट रिजल्ट आया है, रिजल्ट, ओके। यहाँ पे क्या हुआ इसका मीन्स, जो इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या होता है कि जैसे कि बेसिक है, बेस प्रॉपर्टी है, जो भी कोई बेस क्लास है, बेस क्लास मीन्स ऐसा कोई लॉजिक है कि हमने वो अगेन एंड अगेन रिपीटेडली यूज होने वाला है हमारे प्रोग्रामिंग में, सॉरी हमारे एप्लीकेशन में रिपीटेडली यूज होने वाला है, लाइक दैट कोड, या तो जो बेसिक वाला कोड है कि उसकी हमें जरूरत है, हमेशा इट नीड्स टू राइट दैट कोड फर्स्ट, हमें उस कोड को पहले लिखना जरूरी है। तो लाइक दैट कोड वे आर रिटर्न एंड फिक्स इट इनटू द वन क्लास, हम उस टाइप वाला कोड क्या करेंगे, इनसाइड द वन क्लास हम उसे फिक्स कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे पर्सन है, पर्सन वॉक करता है, टॉक करता है, ये तो उसका क्या हुआ, बेसिक हुआ, बेसिक फंक्शनलिटीज हुई। अब उसके बाद है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे देखो कि डेटा मेंबर्स, डेटा मेंबर्स देखिए तो विच इज डेटा मेंबर्स, नेम होगा, उसके बाद कलर है, right? अभी क्या हुआ, बेसिक पर्सन का। उसके बाद अगर स्टूडेंट बन रहा है, नई क्लास बना रहे हैं हम बाय यूजिंग द एग्जिस्टिंग क्लास, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा, नई प्रॉपर्टी, नया डेटा मेंबर क्या आएगा यहाँ पे, रोल नंबर है, रोल नंबर, राइट। और भी कोई नंबर होगा, डिवीजन होगा, तो वो क्या रहेगा उसका, डेटा मेंबर, डेटा मेंबर मींस वेरिएबल्स, डेटा फंक्शंस मींस मेथड्स, राइट।
तो पर्सन थी हमारी क्लास, बेस क्लास है, उसे ही एक्सटेंड करके बाय यूजिंग द एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी विद अ न्यू एडिशनल प्रॉपर्टी ऐड कर रहे हो वेयर इन अ स्टूडेंट। तो ये हुआ हमारा इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट। पहले वाले को एक्सटेंड करके नया कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना है हमें, तो नए इम्प्लीमेंटेशन इससे हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम एप्लीकेशन बना रहे हो, कोई एप्लीकेशन रियल टाइम एप्लीकेशन बना रहे हो, राइट। कि जैसे कि बैंकिंग के लिए हम एप्लीकेशन बना, मतलब 6-7 महीने हो गए कि हमने एक एप्लीकेशन बना दिया बैंक के लिए। मानो कि कंसिडर SBI बैंक का हमने एप्लीकेशन बना दिया है, इम्प्लीमेंट कर दिया है, डेवलप कर दिया है, और उसकी डिलीवरी डेट भी आ गई, हमने उसे डिलीवर भी कर दिया है SBI वाले को, राइट। बट आफ्टर द सम मंथ सम ईयर्स उन्होंने क्या किया ना, उसमें चेंज मांगा। ओके, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है कि दे वांट सम चेंजेस इन दैट एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन। उनके जो भी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन हमने जो इम्प्लीमेंट करके दिया है ना, उसमें ना उनको चेंजेस करके होना है, राइट। अभी देखो कि कोरोना के वजह से हमारा क्या हुआ है, बहुत सारा लॉस हुआ है, तो उसके वजह से ना महंगाई बहुत सारी बढ़ गई है, राइट, मार्केट में। तो सारे रेट्स क्या हो गए, आप चेंज हो गए। तो बैंक हो रहा है तो उनका भी इंटरेस्ट रेट भी चेंज हुआ होगा। तो अब SBI बैंक का हमने तो बना के दिया था उनको एप्लीकेशन 1 साल पहले, बट अब उसमें उनका कहना है कि यार मुझे उसमें चेंज करके होना है, मुझे इंटरेस्ट रेट है ना, इसका है ना जो कैलकुलेशन है, जो लॉजिक हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है उसमें उनको है ना चेंज करके होना है। तो जो इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है, उसका जो बेस रहेंगे ना, या तो SBI का वो अकाउंट होल्डर होना चाहिए, देन उसका अकाउंट टाइप जो था वो किस टाइप का होना है, रिसीविंग हो या करंट हो, ओके, जीरो बैलेंस अकाउंट सेम रहेगा। देन उसके बाद जो भी बेसिक प्रॉपर्टीज लगने वाली है, दोज पर्सन आर द नेशनलिटी इज इंडियन, ओके। या तो महाराष्ट्र में वो लोन के लिए कर रहा है तो अप्लाई महाराष्ट्र का होना चाहिए, राइट। उसका वहाँ का लोकल का एड्रेस, राइट। ये सारी चीजें जो बेसिक लगने वाली है वो तो नेसेसरी है, मैंडेटरी, राइट। उसमें बस चेंजेस क्या है, उनका रिक्वायरमेंट क्या हुआ है गाइस, न्यू रिक्वायरमेंट इज टू चेंज द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो ओनली हम किस पे काम करेंगे, जो प्रीवियस लॉजिक था हमारा सेम एज इट इज, दैट क्लास इज यूज्ड इन आवर न्यू एप्लीकेशन आल्सो। मींस हम उस टाइम नया एप्लीकेशन बनाएंगे क्या गाइस, नया एप्लीकेशन हम नहीं बनाएंगे। जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है ना, जहाँ पे चेंज करना है, तो जो लॉजिक था, बेसिक लॉजिक जो बेस लॉजिक था ना, वो सेम रखेंगे। जो चेंज करना है बस उस क्लास से एक नया क्लास बनाएंगे, जो कि एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करके बनेगा हमारा क्लास। जो बेसिक डेटा मेंबर्स एंड डेटा फंक्शंस वो यूज करके हम नया एक लॉजिक बनाएंगे, कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट ऑफ SBI। उसका जो लोन का इंटरेस्ट कैलकुलेटिंग का एक नया लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे विद द यूजिंग ऑफ एग्जिस्टिंग लॉजिक। जो भी एग्जिस्टिंग हमारा लॉजिक था बेस, उसे यूज करके हम नया लॉजिक बनाएंगे, और उसे जो भी इस SBI की रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल करके उनको आगे डिलीवर कर देंगे सॉफ्टवेयर, राइट। तो ये होता है यूज इनहेरिटेंस का रियल टाइम में, कि अगर विद इन 6 मंथ, आफ्टर द 3 मंथ, आफ्टर द 6 मंथ, आफ्टर 1.5 ईयर, या तो 1 ईयर के बाद कोई चेंजेस करने एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में, तो आप हम सीधे सीधे विच कंसेप्ट वी आर यूज ओवर देयर वी यूज द इनहेरिटेंस कंसेप्ट। अगर इंटरव्यू पूछेगा आपको रियल टाइम में इनहेरिटेंस का यूज कहाँ पे होता है और कैसे करते हो, तो सीधे से नाउ सेम एग्जांपल उन्हें आंसर में दे देना, ओके। कोई भी चीज अगर मेन यूज क्या होता है कि अगर कोई एप्लीकेशन हम डिलीवर भी कर दिए या तो इम्प्लीमेंट हो गया है, और उसमें अगर रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, तो पूरा का पूरा कोड हम डिस्कार्ड कर देंगे क्या गाइस। पूरा एक दो 2-4 साल से हमने वो कोड इम्प्लीमेंट किया है, कोई ना कोई एप्लीकेशन हमने 4 साल में डेवलप किया है, उस एप्लीकेशन को पूरा डिस्कार्ड करके नया एप्लीकेशन बनाएंगे क्या हम गाइस, नहीं बनाएंगे। उसके उसे क्या होगा, अगेन 4 ईयर्स क्या होगा, कंज्यूम होगा, राइट। 4 साल और लगेगा ना ड्यूरेशन, डेवलपमेंट पीरियड उतना लगेगा। तो हम उस
लाइक दैट मीन्स हम उसे उस तरीके से डेवलप करेंगे क्या गाइस? कैन वी यूज दैट वे? नो, वी आर नॉट यूजिंग दैट वे। डिस्कार्ड हम उसे नहीं करेंगे। जो भी था उसका बेस, जो भी बेसिक लॉजिक हमें लगने वाला है, यूज होने वाला है, वो सारा लॉजिक हम यूज करेंगे बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इज इनहेरिटेंस कंसेप्ट। और नया लॉजिक विद द रिक्वायरमेंट, एसोसिएटेड विद द रिक्वायरमेंट बना के हम डेवलप करेंगे, राइट, एंड टू डिलीवर टू हुम अगेन, करेक्ट। उसके बाद एम्प्लॉय, सेम एज इट इज। एम्प्लॉय तो कोई बैंक का होगा या तो कंपनी का होगा, राइट। तो सेम हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय में भी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी वहाँ पे टॉप तो लगेगा, वर्क भी कर रहा है, नेम होगा है, कलर हो रहा है, सारी चीजें। तो यहाँ पे न्यू एडिशनली, अब एम्प्लॉय मीन्स इसका वर्किंग आवर, वर्क फंक्शन ऐड होगा, टाइमिंग ऐड होगा इसमें, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी रहेगा नया, ओके। इसका जो भी नए स्पेसिफिकेशंस मीन्स एडिशनल टास्क होने वाले विद द एम्प्लॉय, रिगार्डिंग टू द एम्प्लॉय, वो सारे इम्प्लीमेंटेशन हम करके एक नया इम्प्लीमेंटेशन करेंगे एम्प्लॉय के लिए। लाइक और रियल टाइम देखा जाएगा कि शेप, शेप क्लास होती है, शेप से हम ट्रायंगल बना सकते हैं, स्क्वायर बना रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो बेस उसका क्या है, शेप है। जैसे कि एनिमल है, एनिमल से डॉग हो रहा है, एलिफेंट हो रहा है, लॉयन हो रहा है, टाइगर हो रहा है, राइट। बट बेस प्रॉपर्टी, बेस क्लास कौन है, विच इज द बेस क्लास? एनिमल इज द बेस क्लास। एनिमल की जो भी बेसिक प्रॉपर्टीज रहेगी उसमें ऐड होगी, वो एनिमल क्लास में हम उस टाइप का लॉजिक इंप्लीमेंट करके रखेंगे, राइट। अब जो भी आप देखो कि डॉग है, डॉगी का फीचर्स क्या होते हैं, वैगिंग द, तो उसके बाद उसके जो भी फीचर्स रहेंगे उसके साथ हम एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। डॉग में क्या है, एलिफेंट के स्पेसिफिकेशन क्या होते हैं, और उसके बाद टाइगर का क्या होता है, लायन का होता है, बट उनका बेस प्रॉपर्टी विच इज द बेस क्लास, एनिमल इज द बेस क्लास। ये होता है इनहेरिटेंस। अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा प्रोग्राम्स गाइस? There is a 5 types of inheritance, but which how many types we are used in our Java programming? 3 types of inheritance we used in our Java programming. Okay, single, multi-level and hierarchical inheritance. Okay, तो अब हमने आज देखा है कि सिंगल इनहेरिटेंस। अब सिंगल इनहेरिटेंस अगर हम देख रहे हैं इनहेरिटेंस कंसेप्ट, तो इनहेरिटेंस कंसेप्ट में हाउ मेनी वेज वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लासेस? हाउ मेनी वेज वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास? 4 ways: parent object, child object, parent reference, by using parent reference holding the object of the child, and child reference holding the object of the parent. That is the core concept regarding to the object creation in inheritance. By creating the, by using the object of a parent, we can access only members of the parent. By creating the object of a child, we can access the parent and child members. By using the reference of parent, can hold the object of child? Yes, it is holding the object of a, it hold the object of a child. Is it possible? And that is the possible. Child reference can hold the object of parent? No, it's not possible in Java programs. You see, अब हमें देखना है कि which properties is inherited in Java programs. Which kinds of properties are inherited in Java programming? See, take a screenshot of this drawing. Yes. Complete. Yes, sir. Okay. अब इनहेरिटेंस यूज करना तो व्हाट इज द सिंटैक्स? हाउ वी कैन एक्चुअली class A by using the which keyword? Extends class parent. parent class. यहाँ पे किस क्लास का नाम देते हैं हम जिसे हमें इनहेरिट करना है? किस क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं हम? बी क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं, कर रहे तो जिस क्लास को हमें इनहेरिट करना है उस क्लास का नाम यहाँ पे देते हैं। फर्स्ट इज विथ क्लास नेम, सब क्लास नेम, जिसमें एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटीज यूज करना है विथ न्यू इम्प्लीमेंटेशन।
ओके, बाय यूजिंग द एक्सटेंड कीवर्ड। अगर एक्सटेंड कीवर्ड नहीं यूज करेंगे तो इनहेरिटेंस होगा क्या गाइस? देयर इज इनहेरिटेंस कंसेप्ट इज यूज नो इनहेरिटेंस कंसेप्ट इज यूज ओवर देयर। ओके, वांट टू मेक अ रिलेशन बिटवीन टू क्लास। अगर इंटरव्यूअर पूछेगा हाउ टू मेक अ रिलेशनशिप बिटवीन अ टू क्लास by using the extend keyword, right? See which members we can't inherit and which members are inherited into the subclass. Okay. Now, subclass. Non-subclass. Now, package name, guys. Which is the package name over there? There is the P1 package, subclass of the P1. Okay, non-subclass. Here we use the P2 is a different package name. P2. Okay. Now over there, non-subclass. Now see, non-subclass of which package? P2, and subclass of which P2 package. Where we use over there, how many packages is created over there, guys? Two packages created, P1 and P2. Now base class. See, this is the that is the base class. Now, if we use the accent keyword, if we are using the inheritance concept, now base class and this is a child class means now this subclass inherit the properties of which base class. So, अगर यहाँ पे प्राइवेट मेंबर रहेंगे बेस क्लास के प्राइवेट मेंबर्स विच आर द प्राइवेट मेंबर्स वी यूज, या अगर यहाँ पे वेरिएबल रहेगा, यहाँ नीचे लग देता हूँ वेरिएबल, उसके बाद फंक्शंस मेथड्स। ओके, वेरिएबल्स एंड देखो ये यहाँ पे इनिट हो सकते हैं गाइस सब क्लास में, इज इट इज इनहेरिटेड इनटू द सब क्लास? यस, Yes, sir. नो, क्योंकि वो प्राइवेट है। ओके, प्राइवेट इज used within the same class only, within the same class guys, right? Within the same class हम उसे यूज कर सकते हैं। outside the same class उसे यूज करेंगे क्या guys? outside the current class? No, we can't use it outside the current class. Now next, in a subclass of a P2 package, no, it is not possible. It is not possible. Okay, up next about what? Protected members, variables and functions. Okay, is it possible हम इसे इनिट कर सकते क्या सब क्लास में प्रोटेक्टेड मेंबर्स इन अ Yes, सेम sir. पैकेज? यस, इन अ Yes. सेम। इज इट पॉसिबल इन अ डिफरेंट पैकेजेस नॉन सब क्लास? नॉन No, सब क्लास sir. में होगा क्या? नो। No. ओके, नॉट पॉसिबल, बट इन अ Subclass possible. yes, it is possible in a सब क्लास। about the default,
variables, functions. Can we inherit into the subclass of P1 package? Yes, it's it possible. हमने सीखा है ना कि डिफॉल्ट इज यूज्ड इन अ सेम पैकेज ऑफ एनी क्लास ऑफ सब क्लास या तो नॉन सब क्लास में हमने इसे यूज कर सकते हैं. नॉन सब क्लास होता है P2 पैकेज. P2 में यूज होगा क्या गाइस? डिफॉल्ट इज एक्सेसिबल इनटू द P2 पैकेज. नो, P2 में सब क्लास हो या तो नॉन सब क्लास हो, दैट इज नॉट पॉसिबल. पब्लिक है तो एनीवेयर वी कैन एक्सेस इट इनटू द करंट प्रोजेक्ट. ओके, सब क्लास में भी होगा, नॉन सब क्लास में भी होगा, और डिफरेंट पैकेज के सब क्लास और नॉन सब क्लास में भी एक्सेस हो सकता है. यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का गाइस? Yes, sir. ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट. पब्लिक में भी लिख देना. हाँ, वेरिएबल्स एंड ओके, 1 मिनट बस लिख ही देते हैं. ओके, सर हाँ यस. सर प्रोटेक्टेड का एक एग्जांपल बताइए ना. आप देखिए, वो तो सारे देखे हैं इनहेरिटेंस वन बाय वन. स्क्रीनशॉट ले लिया. यहाँ तक तो क्लियर है ना ये पूरा चार्ट? यस सर. Okay, is number from access. Where learn about the variables and functions. हम किसके बारे में सीखे अभी? वेरिएबल्स एंड फंक्शन. अब होते हैं कि क्लास एलिमेंट्स कौन से बचे? अब हमारे कंस्ट्रक्टर एंड ब्लॉक. अब उन्हें इनहेरिट कर सकते क्या गाइस हम? कैन वी इनहेरिट द कंस्ट्रक्टर्स एंड ब्लॉक्स इन जावा प्रोग्राम्स? यस. Constructor and static initialization block. Yes, IB, then IIB. Okay, देखो ये बेस क्लास में नाउ this is present in where? Present in the base class. Base class now in a sub class. Init होता है क्या guys in a sub class? These members are not inherited in Java. Constructor, SIB and IIB is not inherited into the subclass. The execution is possible in inheritance, but is inheritance is not possible in a Java programming. Constructor init होता है क्या? Now it inherit into the subclass? No. होगा क्या inherit? SIB init होता है क्या? नहीं होता है. IIB inherit होता है क्या? नहीं होता है. बट उनका एग्जीक्यूशन होता है. इट सीम्स टू लाइक अ इनहेरिटेंस. वो हमें लगेगा कि इनहेरिटेंस हो रहा है, उनका इनहेरिटेंस वो इनहेरिट हो रहे हैं, बट इनहेरिटेंस होता है क्या गाइस उनका? नहीं होता है. बट इट सीम्स टू लाइक अ इनहेरिटेंस, राइट? हमें लगेगा कि कंस्ट्रक्टर इनहेरिट हुआ है, एसआईबी इनहेरिट हुआ है, आईआईबी इनहेरिट हुआ है, बट उनको इनहेरिटेंस होता है क्या गाइस? नहीं होता है. बट हमें लगेगा कि एग्जीक्यूशन से हमें लगेगा कि वो इनहेरिट हो रहे हैं. ओके, तो हम प्रैक्टिकली देखते हैं. Which members are not inherited? Private and constructor, SIB, IIB. Okay. Take one screenshot.
सिर्फ प्रैक्टिकल। आपने पूछा है ना प्रोटेक्टेड नंबर, प्रोटेक्टेड M1 in which class private. So child of which package? P1 package. Parent class is present in which package? P1 package. Same again. P1 child class is present in which package guys? P1. तो यहाँ पे आगे हम M1 फंक्शन कॉल कर सकते हैं क्या? प्रोटेक्टेड है तो can we call it into the child class? Yes, it inherit into the subclass of the same package by creating the object. C1 dot m हो रहा है प्रोटेक्टेड। यस क्लियर। अब देखो कि टेस्ट क्लास है हमारी, टेस्ट इज नाउ it's not a child class of which now see the test class is created in which package guys? In a P2 package. How many packages in our current project? There is a 2 packages, P1 and P2. In a P2, which class is there? Parent class is created. And which member is created over there? We have created over there M1 function with the modifier. Visibility mode is there. Protected. Protected is a access modifier used for a M1 function. अब protected है, हम protected member डिफरेंट पैकेज के क्लास में यूज कर सकते हैं गाइस, उसे एक्सेस होता है क्या? कैन वी एक्सेस द प्रोटेक्टेड मेंबर इन अ डिफरेंट पैकेज क्लास? p1 डॉट m नहीं हो रहा है, इट्स नॉट पॉसिबल। नो सी कैन वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ पेरेंट ओवर हियर? पेरेंट p इज इक्वल टू नो। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है हमें तो फर्स्ट थिंग देयर इज अ कंपाइलेशन एरर। हमें किसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे किसे इंपोर्ट करना होगा? किस पैकेज में? पेरेंट क्लास किस पैकेज में गाइस? P1 में। P1 में तो उसे इंपोर्ट करो पहले। इंपोर्ट करना है तो हम मींस मैन्युअली किस कैसे लिखेंगे? बाय यूजिंग द इंपोर्ट कीवर्ड। इंपोर्ट स्पेस देन किस पैकेज को हमें इंपोर्ट करना है, किस पैकेज को? P1 उसका नाम, देन डॉट उस पैकेज से किस क्लास को या तो किस इंटरफेस को हमें इंपोर्ट करना है उसका नाम। इंपोर्ट देन पैकेज नेम डॉट क्लास, जो भी क्लास हमें इंपोर्ट करनी है उसका नाम। यहाँ पे हो गया। अब बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ पेरेंट, यस इट इज कॉल्ड M1 फंक्शन। The method M1 from the type parent is not visible. वो visible हो रही है क्या डिफरेंट पैकेज के क्लास में? Visibility mode, which is the visibility mode for a M1 function? Protected, right? तो protected डिफरेंट पैकेज के क्लास में होता है क्या यूज? Yes. नॉन सब क्लास में हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते, बट अगर वो सब क्लास हो तो हम नो सी। अगर हम टेस्ट क्लास किसकी सब क्लास बना देते हैं? पेरेंट क्लास। पेरेंट में अवेलेबल है ना M1 फंक्शन। अब एरर सॉल्व हो जाएगी। कैन इट सॉल्व? डॉट फंक्शन अब हो रहा है। यस P1 डॉट M1 फंक्शन कॉल हो रही है ना? Yes, sir. यस किसमें? सब क्लास ऑफ अ डिफरेंट पैकेज। अगर सब क्लास होगी, मैंने वो स्क्रीनशॉट दिया ना आप लोगों को निकालने को, वहाँ पे ड्रॉ किया था हमने, वहाँ पे लिख लेना। डिफरेंट पैकेज के सब क्लास में प्रोटेक्टेड मेंबर्स हम एक्सेस या तो इनहेरिट कर सकते हैं, राइट? ओके ये हुआ अपना प्रोटेक्ट। क्या सीखना था हमें अभी? Which members are not inherited?
which अब इसको हम इनिट नहीं कर सकते गाइस, कंस्ट्रक्टर को कंस्ट्रक्टर देन ब्लॉक्स। अब ब्लॉक्स में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स? टू टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स, वन yes ib, second IIP। ओके, हम इन्हें इनिट कर सकते क्या गाइस? कैन वी इनिट द मेंबर्स, these members? we can init these members, बट इनका एग्जीक्यूशन पॉसिबल होता है, इनका एग्जीक्यूशन होता है इन इनहेरिटेंस। अब नाउ सी, अगर हमने पेरेंट में एक इनहेरिटेंस यूज किया है, what are the rules to declare inheritance in Java? Its name should be same as a class name. It has a visibility mode. Yes, we can set any kind of a visibility mode. Okay, any kind means we can't use for the final abstract. Okay, now see. This is parent. Okay, now this is the parent constructor. Now in a child class, अब देखो child class में we need हो रहा है क्या guys? Parent constructor is inherited in a child? No, it is not inherited in a child, but उसका execution होगा। Now see what is the output of this class, of this program. Run as Java application। यहाँ पे हुआ this is parent constructor। ओके, उसका एग्जीक्यूशन हो गया ऑटोमेटिक। अब हमने एक थ्योरी सीखी थी कंस्ट्रक्टर पढ़ते टाइम, वहां हमने सीखा था कि इफ वी आर create an object by using a new keyword, at least one constructor is called by using, if we create the object new keyword, if we are creating the object by using a new keyword, any one means one constructor is called। अगर हम by using new class new keyword से अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास का, तो उससे कोई ना कोई एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, मैच होगा तो, राइट। अब इससे मैच हो रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर हमने कोई कंस्ट्रक्टर बनाई है, अब यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर नहीं, तो इज इट पॉसिबल टू एग्जीक्यूशन ऑफ अ पेरेंट कंस्ट्रक्टर? अब पेरेंट कंस्ट्रक्टर का एग्जीक्यूशन पॉसिबल है क्या गाइस? सी द आउटपुट, देयर इज द ब्लैंक ऑन अ कंसोल, देयर इज नो एनी आउटपुट ऑन अ कंसोल। होगा क्या विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएशन? नहीं है पॉसिबल। अगर देखो यहाँ पे आप कुछ बंदे बोलेंगे कि यार अगर क्लास में हम कुछ कंस्ट्रक्टर ही नहीं यूज कर रहे हैं तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्ट होता है डिफॉल्ट, बट चाइल्ड में तो कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, या तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्ट होके किसे कॉल जाना चाहिए? पेरेंट कंस्ट्रक्टर को। बट लेकिन देखो गाइस, सी गाइस, यहाँ पे चाइल्ड किसे एक्सटेंड कर रहा है? तो होम पेरेंट को कर रहा है। पेरेंट में प्रॉपर्टी जो भी रहेगी वो कहाँ इनिट होती है? चाइल्ड में होती है, राइट। सो देयर इज अ एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टर इज देयर, चाइल्ड में तो नहीं है बट पेरेंट में तो है। ओके, अब इसका एग्जीक्यूशन होगा कि पेरेंट कंस्ट्रक्टर, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर का एग्जीक्यूशन नहीं होगा। अगर उसका एग्जीक्यूशन करना है तो वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ parent p is equal to new। अब एग्जीक्यूशन होगा क्या पेरेंट कंस्ट्रक्टर का? रन एज जावा एप्लीकेशन, सीधी आउटपुट, दिस इज पेरेंट कंस्ट्रक्टर। तो नाउ सी गाइस, अब एक पेरेंट का अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे डायरेक्टली किससे कॉल होगा? पेरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ओके, पेरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। अगर इफ वी आर नॉट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ अ पेरेंट, पेरेंट का ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं, ना उसे आप पे कमेंट कर देते, अगर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, चाइल्ड सी इज इक्वल टू न्यू
ना किसका ऑब्जेक्ट बनाया गाइस हम लोगों ने, now we are creating the object of a created the object of a child class. तो अब parent का constructor execute होगा क्या गाइस, see Java application, this is parent constructor का execution हो रहा है. तो गाइस टेल मी वन थिंग, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इनहेरिट हो रहा है क्या, इनहेरिट नहीं हो रहा है, वो एग्जीक्यूट कर रहा है. हमें लग रहा है कि उसका इनहेरिटेंस हो रहा है, राइट, बट वो इनहेरिट नहीं हो रहा है, उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है. व्हाई, इफ वी आर क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे, देन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ पेरेंट कंस्ट्रक्टर इज फिर was done. Okay, किसका एग्जीक्यूशन डन हो रहा है, which constructor did executed, parent constructor is executed. We are creating the object of a child class. हम child का ऑब्जेक्ट बना रहे तो किसका कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहा है, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहा है. हाउ दैट इज पॉसिबल, वो कैसे पॉसिबल हो रहा है गाइस, देखो यहाँ पे हो रहा है ना, वर्चुअली हमने ना चाइल्ड में कोई कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं है, बट हमने ऑब्जेक्ट बना रहे हैं बाय यूजिंग द न्यू कीवर्ड. तो वर्चुअली यहाँ पे बन जा रहा है इनसाइड अ चाइल्ड क्लास, which object is created virtually, no argument constructor is created, default constructor, it no implementation, without implementation, and their super keyword is generated in a constructor. ये हो रहा है ना सुपर कीवर्ड, इंटरनली क्या हो रहा है, एक कंस्ट्रक्टर बन जा रहा है चाइल्ड क्लास का, और वो उसमें फर्स्ट लाइन देयर इज अ सुपर कीवर्ड. अब यूजेस ऑफ अ सुपर कीवर्ड, अब ये ना सुपर कीवर्ड का यूज क्या होता है, व्हाट आर द, हेलो आवाज आ रही है आप लोगों को गाइस, Yes, sir. ओके सी. अब सुपर कीवर्ड का यूज क्या होता है हमारे जावा में, accessing the members of a parent and calling the constructor of a parent class. Super keyword in Java. अब देखो super keyword is used to access super class members inside the subclass. Subclass में अगर हमें parent के members access करना है, call करना है, without the operation of object, by using a super keyword हम उसे कॉल कर सकते हैं. इन विच केस we use the super, वो भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे. Using a super keyword we can access superclass methods, superclass fields and superclass constructors in a subclass. in the subclass, अगर subclass में हमें super class के members को कॉल करना है, वेरिएबल्स हो या मेथड हो या कंस्ट्रक्टर, हम किस कीवर्ड का यूज करते हैं गाइस, which keyword is used over there, super keyword is used over there. Okay, समझ में आ गया. When to use a super keyword, if you want same implementation as that, वो तो प्रैक्टिकली बताएंगे. चलो ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया आपको, आप लोगों को कि सुपर कीवर्ड कब यूज करते हैं, फॉर व्हाट पर्पस, कॉलिंग द members of a parent in a subclass. Okay, now see. अब देखो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे कोई देर इज ओनली कंस्ट्रक्टर इन अ चाइल्ड, no constructor is present in a child, but we are creating the object of a child class, then like that one constructor is constructed and super keyword is over there, super keyword is generated. Now अब यहाँ पे super keyword है, by using that super keyword तो किससे कॉल होगा, super keyword भी तो parenthesis हुआ है ना, super function means parenthesis means it match with the constructor of a parent. Of like that constructor is present in the super class, yes that type of constructor is there, तो इसका एग्जीक्यूशन इस तरीके से. Now getting that point, getting it, got it guys, आप लोगों को समझ में आया how the parent constructor is executed.
कंस्ट्रक्टर का यूज, कंस्ट्रक्टर का एग्जीक्यूशन कब होता है गाइस? व्हेन वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। यस, और टू वे कम्युनिकेशन गाइस। मुझे है ना, अब मैं सवाल करता हूँ, आप जवाब देते जाओ। कंस्ट्रक्टर का एग्जीक्यूशन कब होता है गाइस? व्हेन द कंस्ट्रक्टर ऑफ अ क्लास इज एग्जीक्यूटेड, when we create object. व्हेन वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। ऑब्जेक्ट अब देखो नाउ सी, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया, यस। यहाँ पे पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाया क्या हमने गाइस? नाउ सी, इन करंट क्लास वे नहीं, क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट नो ऑफ पेरेंट, नो नो नहीं बनाया। इन चाइल्ड, अब वो इनिट हो रहा है, तो यहाँ पे पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाया क्या गाइस? नो no, वेर क्रिएटेड, नो। हमने वहां पे अब भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, तो हाउ इट इज पॉसिबल? हाउ द पेरेंट कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड? वो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है? हाउ दैट इज पॉसिबल? तो कैसे पॉसिबल हो रहा है? चाइल्ड का हम by ऑब्जेक्ट बना दे रहे हैं, तो चाइल्ड में ना इस तरह का एक वर्चुअल कंस्ट्रक्टर बनता है, एंड देयर सुपर कीवर्ड इज जनरेटेड इन फर्स्ट लाइन। क्योंकि हमेशा हमने दिस का भी देखा ना कंस्ट्रक्टर चेंज, तो दिस से हम कंस्ट्रक्टर कॉल करने के, दिस फंक्शन यूज टू कॉल अ कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर कॉलिंग, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। हमेशा क्या होता है? दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट इन करंट क्लास कंस्ट्रक्टर कॉलिंग। उस कंस्ट्रक्टर बॉडी में दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को अगर कॉल करना है, दिस फंक्शन इज इन फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट होना जरूरी है, इट नीड टू बी एट द फर्स्ट स्टेटमेंट, राइट? अब सेम एज इट इज अबाउट द सुपर मींस पेरेंट कंस्ट्रक्टर, सुपर कीवर्ड also that is the, you know, which line guys? It is in a first line. सुपर इज फर्स्ट स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर कॉलिंग। अगर पेरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो सुपर इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। यहाँ देखो चाइल्ड में कोई बॉडी इंप्लीमेंटेशन है, देयर इज और देयर एनी लॉजिक? नो। विच इज द फर्स्ट लाइन? सुपर कीवर्ड फर्स्ट लाइन, सुपर इज द फर्स्ट लाइन, राइट? यहाँ से किसे कॉल होगा फिर? पेरेंट कंस्ट्रक्टर। तो ये तो हुआ अबाउट मीन्स नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर का। यहाँ पे आर्गुमेंट है, that is about the no arg constructor. Now see guys, यहाँ पे अगर हमने आर्गुमेंट पास कर दिया तो सॉरी, now see, अब पॉसिबल है क्या? अब एग्जीक्यूशन होगा क्या गाइस? टेल मी। अब यहाँ पे एग्जीक्यूशन नहीं होगा, बट हम उस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया है, यहाँ पे अगर वैल्यू पास कर देते हैं हम यहाँ पे पेरेंट ऑब्जेक्ट बना के, तो भी एरर सॉल्व नहीं हो रही। यहाँ पे ना किस टाइप की एरर आएंगी? कंपाइल टाइम एरर आएगी। implicit super constructor parent is undefined for default constructor। यहाँ पे देखो ना किस टाइप की एरर्स आ रही है, और बाद में लगा नहीं यार, किस टाइप की एरर आ रही है गाइस? देखो कि कंपाइलेशन एरर आ रही है, क्योंकि ना डिफॉल्ट implicit super constructor parent is undefined मींस implicitly जो ऑटोमेटिक कर रहा था कंस्ट्रक्टर पेरेंट इज अनडिफाइंड फॉर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उस टाइप का है क्या? अभी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, मस्ट डिफाइन है एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर। इम्प्लिसिटली नहीं हो रहा है, तो हमें एक्सप्लिसिटली कंस्ट्रक्टर बनाना होगा, वेयर इनसाइड द चाइल्ड क्लास। कहाँ बनाना होगा हमें गाइस? अभी ऑटोमेटिक कॉल होगा क्या गाइस? क्योंकि यहाँ तो आर्गुमेंट है, यहाँ पे चाइल्ड में होगा क्या? इम्प्लिसिटली हो नहीं होगा, हमें एक्सप्लिसिटली उसे कॉल करना होगा। तो इट्स नेसेसरी टू मेक अ कंस्ट्रक्टर इनसाइड अ चाइल्ड क्लास में, चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर। ओके, यहाँ पे तो बन गया। यहाँ पे सुपर कीवर्ड यूज करना होगा, सुपर, उसके बाद आर्गुमेंट वैल्यू पास करनी है। अभी एरर सॉल्व हो गई, यस। यहाँ से भी एग्जीक्यूट होगा, यहाँ से भी एग्जीक्यूट होगा। हमने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना दिया, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना रहा है मीन्स ये वाला किससे मैच हो रहा है? ऑब्जेक्ट लाइन is matched with this, that constructor is constructed से मैच हो रही है, which is the first statement, super। then हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, that's why also now is child
दिस इज द चाइल्ड कंस्ट्रक्टर। अब आउटपुट क्या रहेगा गाइस प्रोग्राम का, यहाँ से तो ऑब्जेक्ट बनेगा, विच कंस्ट्रक्टर विल गेट एग्जीक्यूट फर्स्ट, कौन सा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा पहले, विच इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, पैरेंट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट पहले होगा। इनहेरिटेंस में क्या होता है, पैरेंट का कंस्ट्रक्टर पहले एग्जीक्यूट होता है, देन चाइल्ड कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है। ओके, run as Java application. This is parent constructor and this is child constructor. Got it? Yes, sir. Okay, constructor में कोई दिक्कत, कंस्ट्रक्टर इनहेरिट होते हैं क्या, कंस्ट्रक्टर इज नॉट इनहेरिटेड, बट वो हमें क्या कैसे रखता है, सेम टू लाइक इनहेरिटेड। ओके, इनहेरिटेंस हो रहा है इनका, इनहेरिटेंस इनहेरिट होते नहीं है वो, इनका एग्जीक्यूशन होता है, राइट। तो कंस्ट्रक्टर के बारे में और भी कुछ है तो हम कंटिन्यू करेंगे फिर। ओके, रिमेनिंग का